I had a back problem. During pregnancy? So my doctor said that कि आपको spine में I used to wear a lot of suits. People used to say you are bhenji. बचपन में? हाँ. I had told my mother I want someone who doesn't drink, smoke and gamble. Because I don't drink, smoke and gamble at all. मैंने अपने बेटे को एक दिन बोला कि मेरा डेडलाइन होता था 5 बजे का. मैंने कहा वाह मम्मा नानी सो कूल. तो मैंने कहा 5 AM नहीं 5 PM. So I am actually very very proud of him. So you've taught him any set of thing? खाना बना सकते हैं, वाह, कपड़े धो सकते हैं. वाह की बात नहीं, तो करना पड़ता है, करना चाहिए. यंगर जनरेशन को ये समझना चाहिए कि जो वो देख रहे हैं वो लाइफस्टाइल्स वो सच नहीं है, कपड़े उनके नहीं हैं, हॉलीडेज उनके नहीं हैं. माय फैमिली वाज वेरी कंजर्वेटिव, बट डू यू हैव टू बी अ न्यूड टू गेट इनटू अ म्यूजियम. हम लोग सिटी में बैठे हैं, सिक्योरिटी है, कैमरास हैं, बट These women who are going to work, वो रात को भी जाती हैं, अकेली भी चलती हैं, साइकिलों पे जाती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, वो हमसे बहुत फॉरवर्ड है. Hi, I'm Shalini Pasi and you're watching me on Hotterfly. Hello Shalini ji, welcome back to the Male Feminist Super Powered by Clovia. क्या हाल है आपके? Thank you so much for having me. रिसर्च करते समय आपके बारे में काफी कुछ जाना. I realized that you've had a very illustrious past with your grandparents being very very influential and very very learned people who were very big in the Delhi architectural space. Everybody's, I think, grandparents were inspirational. I think they lived in a time where people did things because that was the 1960s, 70s was when India was coming on its own. So I guess we all have that stories. My grandfather had built Vayu Bhavan, DD building. I used to see the plans. I used to come to the house, blueprints. My grandfather, my uncle, my dad used to be working on the blueprints. I had no idea कि blueprints क्या होता है at that age, or what is the meaning of the numbers or everything. ये सब as a little girl आपके दिमाग को कैसे चीजें ट्रेन कर रहा था, क्या सीखें मिल रही थी आपको? So I used to visit the sites with my grandfather and my... As a teenager? Or before that only? Before that. Wow. As a young kid, like 5-year-old, 6-year-old, because I used to spend a lot of time with my grandparents. ये मेरे को शालिनी जी ये लग रहा है कि ये आपके सारे जो इन्फ्लुएंशियल मर्द रहे जिंदगी में ये सब फेमिनिस्ट थे. My family was very conservative. Grandparents were also like, they brought me up in a very conservative manner, but also they encouraged everything. If I had to go for swimming lessons, my grandmother would say, you must do, but I'll come and sit with you. So I was somewhere pampered and still I was working very hard. So my grandmother used to be sitting there in the swimming classes because I think she just loved me and I was the first grandchild. She couldn't see beyond me with my juice and my fruit and the milk and the badam, everything. Still they gave, they pushed me to do swimming, do this, do that. So. और not to be intrusive, लेकिन swimming costumes आपकी, when you said conservative, would they be then conservative appropriate या you could be wearing? So they honestly felt that if it was required for a sport, it was fine, That's interesting. Yeah. देखिए शालिनी, आप पहनावा की बात कर रही थी. दिल्ली कितना सेफ होता था? क्या हमेशा से ऐसा डर जो है अभी की महिलाओं में वो था वहाँ पर? दिल्ली आई थिंक पहले ज़्यादा सेफ था बिकॉज पॉपुलेशन कम था एंड बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज़ कम हैं, तो सब लोग सिटी की तरफ आते हैं, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. बट ऑल्सो मैं अलाउड नहीं होता था बाहर जाना ना. मैंने अपने बेटे को एक दिन बोला कि मेरा डेडलाइन होता था 5 बजे का. तो उन्होंने कहा वाह मम्मा नानी सो कूल, आपका डेडलाइन था 5 बजे. तो मैंने कहा 5 AM नहीं 5 PM. वाह. मुंबई आके कभी आपको ऐसा लगता है कि मुंबई मोर सेफर, मोर लाइक फ्रीयर? People say that you can wear what you want, you can be out late night, but I feel that it's same in both cities. Yeah. If you are like, I think it's pretty much similar. Okay. Yeah, some of the safest cities in the world have become unsafe now. But शालिनी, आप कहाँ hang out करती थी बचपन में? What would be your chilling places then? 5 बजे तक जो टाइम होता था तब तक?
5 बजे मैंने कभी आई थिंक चिल नहीं करा है. क्या बोल रही हो? मतलब मैं को कभी ऐसे नहीं देखूंगी तो मैं ऑन द काउच एंड आई एम चिलिंग. नो बट आउटसाइड विद फ्रेंड्स मतलब नो मुझे ना एंजाइटी हो जाती है अगर मुझे 4-5 घंटे फ्री मिल जाए या 2 घंटे या आधा घंटा. आप क्या हाइपर प्रोडक्टिव महिला हो? हाँ. ऑलवेज ऐसी रही हो? बट लाइक दोस्तों के साथ चिल करना वगैरह नहीं? नहीं. तो हैंग आउट घर पे होता था फिर आपके? नहीं. नो डेटिंग लाइफ? डेटिंग लाइफ थी नहीं. माय मदर सेड कि if any boy calls you I'll send you to boarding house. So I told everybody like if you want me to go to boarding then you call me. Otherwise and I used to give them a friend of mine said that I used to give them the number with 1 digit missing. Always. Because sometimes they would ask वो बार-बार वही पूछते थे नंबर तो मैं 1 डिजिट मिस कर देती थी. क्या बात है. क्योंकि मुझे एटलीस्ट अपना नंबर तो याद रहता बट लास्ट वाला नंबर नहीं देती थी. बट वो तो 10 बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा बिठा के नहीं के. होती थी लोगों को. जो क्रेजी स्टोरी मुझे पता चली वो ये भी था कि आपके हस्बैंड के परिवार ने गेट क्रैश की थी कोई वेडिंग और वहां पर आपसे मिलने आए थे. मेरी फ्रेंड की वेडिंग. तो आप झेप नहीं गई थी? मुझे नहीं पता था वो क्यों आए थे लोग. तो क्या बोले आपको वो? मेरे को नहीं, मेरे पेरेंट्स से बात कर रहे थे ऐसे खड़े होके. आई थॉट कि व्हाटएवर. बट यू रियली यंग, तब कैसा लगा आपको? डिड यू वांट अथॉरिटी ओवर योर लाइफ और वर यू लाइक ठीक है this is the decision they've made, ठीक है? No, so I had told my mother I want someone who doesn't drink, smoke and gamble. Because I don't drink, smoke and gamble at all. और मम्मी के साथ कैसी रिलेशनशिप थी? What would you all discuss? My mother was very strict. Really? But she was also very disciplined, loving, authority, but like she was very clear कि classes करो, जितनी activities करनी है सीखो, it's very good, but don't do anything which is wrong. Don't smoke, don't get into drinking habits and all that. So cool. देखिए हम काफी इंपॉर्टेंट बातें करते करते एक खास सेगमेंट पे पहुंच चुके हैं जो सुपर पावर्ड बाय क्लोविया है हमारा सेगमेंट. यू नो क्लोविया as a brand is trying to break the kind of taboo that exists around lingerie. How do you think such conversations help women embrace their bodies and feel more confident in their bodies? I think not just conversations but sometimes I see these little snippets which come out on Instagram. I think cinema is a very powerful medium. So their things that are inserted will make everything much easier, easier to talk about. The point that I was getting at is कि lingerie shopping काफी daunting होता है कई लोगों के लिए और there is lack of awareness about sizes. How important do you think wearing the right lingerie is for a woman? I think it's very important and now we have very good online. Yes. And size guides are available. So I think it's very, and the younger generation is very tech savvy. हमारी जनरेशन के लोग भी बहुत टेक savvy हैं, हमारे से ओल्डर भी अब टेक savvy हो गए हैं, तो आई थिंक इट्स गुड. स्पीकिंग ऑफ ग्रोइंग अप, क्योंकि आप इतनी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन हो सकती हो, कई गर्ल्स दे फेस बॉडी इमेज इनसिक्योरिटीज ड्यूरिंग प्यूबर्टी. हाउ डिड यू नेविगेट दिस चेंजेस एंड यू रिमेन्ड कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन? कोई टिप्स अगर आप दे सकती हो फॉर द गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस. सो अभी मैं बहुत देखती हूँ एक चीज़ के जब ना 15-16 लड़कियां थोड़ा ऑड फील करती हैं, 14 हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, हेयर है, फेशियल हेयर स्टार्ट्स कमिंग, तो वो सब चीज़ें. बट आपको मतलब अभी इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और ये 2-3 साल के लिए होएगा. उसके बाद में आपके हार्मोन सेटल हो जाएंगे तो बेटर हो जाएगा. अगर ये पैनिक आ जाता है लड़कियों में, मैंने देखा है, और स्पेशली अब मैं ये देख रही हूँ एक ट्रेंड है जो 18-19 ईयर की लड़कियाँ हैं, बोटॉक्स वगैरह करवाना, वो बहुत ज़्यादा छोटी लड़कियों में वो ट्रेंड जो है बहुत बढ़ गया. सो वो गलत है बिकॉज अभी आपकी जो है बॉडी डेवलप नहीं हुई है. 18-19 इवन 2022 में अगर करवा रही हैं चीज़ें तो वो ठीक नहीं है. अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो लोग आपको प्यार नहीं कर सकते. सबसे पहले अपने आप को, अपने दिल में कि मैं ठीक हूँ, मेरे लिए मैं यहाँ से हूँ, तो ये मेरा हेयर कलर है तो यही रहेगा. अगर मेरा हेयर कलर ब्लैक है तो मेरी दादी का बाल है, या ये मेरा नाक है तो मेरे फादर का नाक है, ये मेरा स्किन है, तो वो आपको मतलब हाउ कैन यू नॉट लव योर मदर्स स्किन, हाउ कैन यू नॉट लव योर ग्रैंड मदर्स आईज. सो it's just like people have to change and see how they look at things, younger generation को ये समझना चाहिए कि जो वो देख रहे हैं वो लाइफस्टाइल्स वो सच नहीं हैं, कपड़े उनके नहीं हैं, हॉलीडेज उनके नहीं हैं. मतलब बूथ्स में शूटिंग होता है और फिर बदल जाती हैं चीज़ें, तो मतलब वो सब चीज़ें जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, वो एक्चुअली उनका नहीं है. तो दैट डिससैटिस्फैक्शन जो आ रहा है
यूथ में, वो इट्स आई मीन उनको हार्ड वर्क करने से उनको डिमोरलाइज कर रहा है वो. आपके माइंडसेट में कैसा चेंजेस आ रहा था कि और आपके आसपास की लड़कियों को इतनी छूट मिलती थी क्या? We used to wear a lot of suits because we used to do dance classes, and sometimes people used to say you are bhenji and all, you're wearing a suit. बचपन में? हाँ. What are you saying? तो आज लाइक ये जो सब लड़के बैठे हुए हैं ना स्टेज के नीचे, ये डांस देखने के लिए नहीं बैठे हैं. तो so what do you mean? I said, what do I mean? I said, I'm wearing a suit because you can see everything when you're sitting down. So I mean, it is how, like, obviously I prefer my privacy. There are ways to wear things. If you want to wear something which is, a spaghetti strap, it's a choice, right? If I want to wear a short skirt, it's a choice. हाँ जी. If I want to show my legs, it's a choice, right? So that I think people have respected, and more people are like, if she wants to wear a short skirt, it's fine. If she wants to wear a suit, it's fine. So Yeah. that understanding has to come. मैंने ये देखा है कि आपकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट पे ही आपके बेटे के साथ आपका काफी बढ़िया रिलेशनशिप है. बट एज अ बॉय आर यू टीचिंग हिम वेज टू talk to women better, be a Yeah. better human? Yeah, so I'm actually very, very proud of him. I wouldn't take the names, but during the pandemic, certain things happened, and some families there was some situation in somebody's family where the girl had ran away. Oh damn. So my son went and got her back What are you saying? during the pandemic, yeah. Crazy. And many times there have been, like, a boyfriend and a girlfriend have fought, and then there's been a situation, and my son has, taken care of the girl, dropped her back home, or stuff like so many, and I'm very, very proud of him. Like when my son came back, जब वो वापस आए, पढ़ रहे थे बाहर, तो जब वापस आए, उनका लास्ट फ्लाइट था जो लैंड करा था दिल्ली में. Oh damn. वो निकल सकते थे एकदम से बाहर एयरपोर्ट से, पर वो नहीं निकले क्योंकि उनके कॉलेज से और लड़कियां थीं और लड़के थे. उन्होंने कहा कि मैं तो निकल जाऊंगा क्योंकि वो थोड़े स्ट्रांग हैं, बट ये लोग नहीं रह पाएंगे. और वहाँ पे ये उनके साथ रहा एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स को नहीं छोड़ा. मैं दो बाहर बैठ के रो रही थी बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट के, बट वेरी प्राउड ऑफ हिम. Very much like you then. But girlfriend, and does he tell you about his dating life? No, because he says then you talk to those girls and you just send them smileys and all. But that's a cool thing. Do you tell him to be doing chores at home? हाँ, of course. And जब हम travel भी करते हैं तब भी, yeah. So you've taught him any set of thing? कुछ हाँ, है वो तो? बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, वाह. कपड़े धो सकते हैं. वाह की बात नहीं, वो तो करना पड़ता करना है चाहिए ना, करना सबको. चाहिए ना. हाँ, वाह वाह क्या वाह बात की है? कोई बात नहीं है. सब जेंडर वाह को ये की करना क्या, चाहिए. वाह की बात नहीं है. अपना खुद अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या तुम्हें पसंद है या कैसे बनाते हैं, तो फिर क्या रह सकते हो ना. हर आदमी को एक सस्टेनेबल अपने आप में कंटेन होना चाहिए. खाना बनाना, कुकिंग, प्रेस, मतलब झाड़ू पहुंचा. हाँ, अगर आप एक सस्टेन, वो आप में कॉन्फिडेंस आएगा ना. अगर आपको पता आप सब कर सकते हो, दो आपके पास जितना हेल्प है, बट अगर आपको पता आप सब कर सकते हो, आपको कभी भी वो माइंड में वो नहीं रहेगा. नहीं तो हमेशा वो इनसिक्योरिटी रहेगी. जब बच्चा हुआ तब what kind of changes was your body going through? Did you ever face postpartum of any sorts I had a back problem. during pregnancy? So my doctor said that कि आपको स्पाइन में इंजेक्शन लेना पड़ेगा for Oh, the damn. rest of your life. Oh no. क्योंकि बिल्कुल भी सेंसेशन खत्म हो गया था लेग्स में, स्पाइन में. This is after you gave birth or before? Like After. Oh damn. So I went to the doctor with my mother and my husband, and this डॉक्टर ने कहा कि आप को ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा स्पाइन में every 4 to 6 months. Man, the kind of things women go through, we have no idea. So I just, मैं वहाँ से उठ के चली गई, और मेरी मदर और हस्बैंड ने सोचा कि ये वॉशरूम गई है. मैं गाड़ी में बैठ के, डॉक्टर ने कहा कि आप हील्स नहीं पहन सकते और आप डांस नहीं कर सकते. अब मैं बैठी गाड़ी में, अपनी डांस क्लास के लिए गई. फिर तो मैं मदर से ये ऐसी है, मैं क्या बताऊँ आपको. मैंने कहा मैं आई हैव टू डांस, आई लव डांसिंग एंड आई लव वेयरिंग हील्स. सो आई हैड टू विद योगा, with Ayurveda, and so I have like breaks in the spine, but I don't know. So I with exercise
yoga and with muscle training and strengthening. I've strengthened my back. मैं अभी भी उन्हीं डॉक्टर के पास जाती हूँ. वो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अमेजिंग डॉक्टर हैं. मैंने आज तक उनसे दवाई नहीं ली, बट मैं चेकअप के लिए हर 5 महीने उनके जाना पड़ता है. एंड आई ओ हिम. आपको कटाक्ष नहीं देते वो कि आपने वो तब मेरी बात नहीं मानी? नहीं, पर उन्होंने कहा कि मिरेकल है जो तुमने ठीक कर लिया, मिरेकल है जो तुम चलते हो, मिरेकल है जो तुम हील्स पहनते हो, मिरेकल है जो तुम डांस कर सकते हो. वो बहुत खुश होते हैं. ये बताओ, फॉर द मदर्स वाचिंग दिस, डू यू थिंक देयर deserve support rather than judgment? You know, you've also gotten some kataksh from the world when your body dimensions change, and then when you lost also they came at you. Yeah. So how do you think हम as a society हमारी माओं को और support दे सकते हैं, या ये कटाक्ष कैसे बंद कर सकते हैं अगर करना हो तो? नहीं, तो अभी क्या होता है कि मेरे ना जैसे जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो मैंने काफ़ी लाइक 25 28 30 kgs पुट ऑन कर लिया था वेट. उसमें से बहुत वाटर रिटेंशन भी होता है. एंड बट उससे क्या होता है कि एक नेचुरल प्रोसेस होता है वेट लॉस का. अभी मैं देख रही हूँ कि लड़कियाँ प्रेशर से आके ना एकदम क्रैश डाइटिंग करती हैं. उससे हेयर, स्किन, आईसाइट, ब्रेन फंक्शन अफेक्ट होता है. इवन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अफेक्टेड. तो वो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस फॉर बॉडी को वापस जाने में. और आपको ये एक बात याद रखनी है कि आज सिर्फ आपकी बॉडी आपके साथ रहेगी और कोई नहीं रहेगा. एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू, क्या ऐसा है कि आर्ट स्पेस में औरतों को जज किया जाता है, या कभी कभी आपने कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस होते हुए देखा कभी आर्ट स्पेस के अंदर? अभी तो नहीं, बट पुराने कई सदियों से, और ये वर्ल्ड वाइड है. अच्छा. कि विमेन आर्टिस्ट को बहुत ही मार्जिनलाइज किया गया था शुरू से ही, हर वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर में भी. तो वो तो होता आया है. एंड अगर आप देखेंगे टॉप म्यूजियम्स में एक लाइन भी है कि डू यू हैव टू बी अ न्यूड टू गेट इनटू अ म्यूजियम. सो विमेन के न्यूड्स हैं, पर एक्चुअल विमेन आर्टिस्ट के पेंटिंग्स बहुत कम हैं म्यूजियम्स में. अब बहुत चेंज हो रहा है, डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं, फिल्म्स बन रही हैं, बट बहुत ज़्यादा ये था. I'll move on to talking about as an entrepreneur. Have you ever had to face कि जैसे भूमि पेडनेकर हमारे शो पे आई थी, उन्होंने बताया कैसे एज अ प्रोड्यूसर कई बार वो बात करती हैं और they will look at the man in the room. So मैं एक्चुअली थोड़ा रिवर्स है यहाँ पे सिचुएशन. क्या बात है, बताओ. मेरा बेटा कहता है यू लव विमेन एंड यू आर एंटी मैन. ओके. वो मेरा बेटा कहता है. फेयर इनफ. कि हमारी सारी टीम विमेन की है. वाओ. आई प्रेफर विमेन. आई गिव देम मोर इम्पोर्टेंस. आई गिव देम. ये हमेशा से रहा आपका? हाँ, आई थिंक सो. आई हैव ऑलवेज बीन वेरी, मेरे को हमेशा ही लड़कियों के साथ रहना, औरतों के साथ रहना, चाहे वो टीचर्स हो मेरी, या टीचर्स हों, कॉलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, मुझे ज़्यादा अच्छा लगा. मुझे अपनापन जो आता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो आई एम बायस्ड टुवर्ड्स विमेन. ये बताओ कि विमेन लीडर्स को भी एक तरीके से देखा जाता है और उन्हें क्वेश्चन किया जाता है कि हाउ डिड दे गेट देयर. देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि हु इज शी एसोसिएटेड विद, और हु इज शी मैरिड टू, और हु इज शी टॉकिंग टू, एक्सेट्रा. वो कटाक्ष मेरे को बड़ा बॉदर करता है. कॉर्पोरेट में भी बहुत सुनने को मिलता है, बॉलीवुड में तो है ही. आई थिंक मुझे ये लगता है कि जितना ऊंचा उसी से ही हम लोग और ऊंचे कूदते हैं. आप डाल दो और डाल दो, हम और ऊंचे कूद जाएंगे. बहुत सुंदर. हम मतलब अपने आप को प्रूव करते करते हम इतने अच्छे हो गए हैं. मस्त है. मतलब आप देख लो, मतलब आपने बोला कि अगर आप कह रहे हो कि प्रूव करना पड़ता है, तो कर रहे हैं ना विमेन. वेरी कूल. प्रूव कर रहे हैं और ब्यूटीफुली कर रहे हैं. दे आर अचीविंग, they are doing, they are in politics, they are in business, they are leaders, they are mothers, they are doctors, and they are doing it. Now तो there's a gaffer. उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कोई बोल रहा है आप कैसे आए नहीं आए, वो आए हैं, उनको पता है, वो सुनना पड़ेगा. सो ठीक है. आपके लिए फेमिनिज्म क्या है शालिनी? विलेजेस में जाती हूँ या स्मॉल टाउन्स में जाती हूँ, जो एम्पावरमेंट में देखती हूँ विमेन को स्कूटी चलाते हुए, स्कूल्स में पढ़ाते हुए, डॉक्टर्स, नर्सेज, उन सब को देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये विमेन दिस इज़ पावर, दिस इज़ गर्ल पावर, एंड दोज विमेन नीड टू बी पुट आउट, दोज विजुअल्स नीड टू बी पुट आउट, बिकॉज हम लोग सिटी में बैठे हैं, सिक्योरिटी है, कैमराज हैं हर जगह,
पुलिस है, बट द एक्चुअल पीपल इन द villages जो हैं वहाँ पे roads हैं which don't have electricity, there's no light there. These women who are going to work, working in hospitals, working in offices, police officers होती हैं, nurses in hospitals, तो वो that, and they are very very strong and powerful, and they know what they're doing. वो रात को भी जाती हैं, अकेली भी चलती हैं, साइकिलों पे जाती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मोबाइल्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, तो वो हमसे बहुत फॉरवर्ड हैं. तो वो सब चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी मीडिया पे. करेक्ट बोल रहे हो आप कौन से विलेज से देख रही हो और आप लोग क्या करती हो, प्लीज कमेंट्स में बताओ. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मेल फेमिनिस्ट. कैसा लगा आपको? वेरी नाइस. मजा आया? आप लोगों को कैसा लगा प्लीज बताना हमें कमेंट्स में. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस इज मी सिद्धार्थ आलम साइनिंग ऑफ. थैंक यू क्लोविया. थैंक यू क्लोविया.